Dear students, welcome back. Now, continuing further, in the previous video, we learned about briefly this. The purpose of translation. We understood how translation acts as a literary bridge. That means it gives the access to the readers to diverse literary style, themes, and genres. Right. Second purpose was cultural bridge. That how translation serves as a kind of passage for cultural exchange and the transmission of ideas, values, and tradition between cultures. And then we understood how translation acts as a knowledge bridge. Knowledge bridge means that it facilitates the dissemination or transfer of knowledge and information across linguistic boundaries, right? And the last point was self-other interaction. Self-other interaction is a dialogue between self and other by bridging the gap between different linguistic and cultural identities. So we finished here. So now we start from here itself. Now we'll discuss another important topic today, that is domestication. Domestication or readability in the target language. So now domestication, those who are students of history or almost everyone has studied history up to class 10. So you must be knowing what is domestication. Domestication, actually, it is a term which is used uh, to describe a process in which you try to make something familiar with yourself. In the ancient times when civilizations and had just started taking shapes on this earth. So when we used to be dependent on the forest and human beings were hunters and gatherers. So slowly what they did is, they started forming families, communities, and then they domesticated various animals like cow, buffalo, sheep, goat, and dog also. So because they cater to their needs. So that is how these animals they started living with human beings, and you can say they were domesticated. So if you understand this process, then you will be able to understand domestication in translation also. तो ये क्या हुआ, हमने जो पुराने समय में जैसे इंसान जंगल में रहते थे उस वक्त जो हंटर और गैदरर होते थे, मतलब शिकार करते थे या इकट्ठा करते थे खाना भोजन, तो धीरे धीरे क्या किया, फिर हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो डोमेस्टिकेशन कर दिया उनका। जैसे पहले ये सारी वाइल्ड काउज होती होंगी, बफलोज, तो अभी भी वाइल्ड बफलोज हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए हमने उनको डोमेस्टिकेट कर दिया, अपने घर में ला के बांध दिया और फिर वो अपने हिसाब से हम उनसे फ़ायदा लेने लगे, राइट। So इसी तरह से domestication in translation also, right? So it is a strategy where the translation adapts the text to make it more familiar, relatable, and easily understandable to the target audience. तो domestication क्या है? एक स्ट्रेटजी है, ट्रांसलेशन की स्ट्रेटजी है। उसमें क्या करता है ट्रांसलेटर, वो जो टेक्स्ट है उसको अडेप्ट करता है। अडेप्ट मीन्स यू कैन से चेंजेस इट to make it more familiar, relatable, and easily understandable to the target audience. कि मेरे टारगेट ऑडियंस को किस तरह से अच्छी तरह समझ में आता है, वो किस तरह इसको अपने से रिलेट कर सकता है, या कैसे वो इससे फैमिलियर तरीके से समझ सकता है, वैसे मैं उसको बदल देता हूँ। उस टेक्स्ट को, जो सोर्स टेक्स्ट है वो मैं अपने ऑडियंस के हिसाब से उसको दे देता हूँ। सो इट इज़ जस्ट लाइक you ask your mom for pizza and वो क्या करती है, वो रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा के और थोड़ा सा प्याज और टमाटर काट के आपको एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रख के दे देती है, और वो कहती है ये भी पिज़्ज़ा ही है, ये ज़्यादा हेल्दी है। सो दिस इज़
वो आपका एक देसी पिज़्ज़ा हो गया, दैट इज़। वैसे ही ट्रांसलेशन में भी ट्रांसलेटर क्या करता है, वो जो सोर्स टेक्स्ट है उसको अपने ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से उसको अडेप्ट कर देता है, उसको बदल देता है, राइट। सो नाउ इफ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, देन दिस, इसके अंदर प्रायोरिटी क्या है मेरी, इसमें मेरी प्रायोरिटी जो है वो टारगेट लैंग्वेज है। So my priority is cultural and linguistic form norms of the target language and audience. मेरा मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट के प्रति वफादार हूँ। आई शुड ट्राई टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सोर्स टेक्स्ट। नो, माई पर्पस इज टू, माई प्रायोरिटी इज टू take into account the cultural and linguistic norms of my target language, that is the target audience, right, not the source text. Original source text जो है वो I uh, may or may not be that much authentic or that much fiddle मतलब मैं ज़रूरी नहीं है ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट के बहुत क्लोज जाऊँ। मेरा पर्पज़ है मेरे ऑडियंस को समझ में आना। So domestication involves various techniques which are aimed at enhancing the readability and accessibility of the translated content. तो डोमेस्टिकेशन सीधी सी बात है, मैं अपने घर में ला रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका ट्रांसलेटर है उसका पर्पस टारगेट ऑडियंस और टारगेट लैंग्वेज, ना कि सोर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं। देन सो देर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स विच ही डज। फर्स्ट इज कल्चरल एडेप्टेशन। कल्चरल एडेप्टेशन में क्या करता है ट्रांसलेटर्स, दे रिप्लेस कल्चरली स्पेसिफिक रेफरेंसेस, idioms एंड expressions फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज विद इक्वलेंट्स दैट आर मोर फैमिलियर एंड रेलेवेंट टू द टारगेट ऑडियंस। मतलब वो सपोज इज ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन यूरोपियन कल्चर, एक नॉवेल है मान लो इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको मैंने ट्रांसलेट करना है हिंदी में, राइट। अब जैसे आपके पास है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, अगर मुझे अपने टारगेट ऑडियंस, मेरा टारगेट ऑडियंस यहाँ का है, हिंदुस्तान का है, तो वो वेनिस उसकी समझ में कौन सा सिटी कहाँ है, तो क्या करेगा वो, वेनिस की जगह वाराणसी कर देगा। और वाराणसी का व्यापारी, राइट, तो वाराणसी का व्यापारी है तो वहाँ जो आपका जो कैरेक्टर्स है वो भी अडेप्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपके पास कैरेक्टर्स एंटोनियो है, और एंटोनियो अब यहाँ एंटोनियो ना होके कुछ राम खिलावन हो जाएगा, राम खिलावन भैया, राइट। एंड सिमिलरली जो इडियम्स हैं, इडियम्स जैसे इंग्लिश में अलग इडियम्स हैं, उनका मीनिंग और उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। हिंदी में अपने अलग इडियम्स हैं। जैसे इंग्लिश में अगर बोलना हो कि बैड वर्कमैन क्वाइल्स विद हिज टूल्स, तो हिंदी में आप अगर इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो एक ख़राब जो कामगार है अपने जो औजार हैं उनसे लड़ता है। तो लेकिन ये समझ नहीं आएगा हिंदी ऑडियंस को। तो हमारे यहाँ क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कन्वे द मीनिंग टू द टारगेट ऑडियंस, सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट टू योर टारगेट ऑडियंस। आपकी जो रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है ट्रांसलेटेड कंटेंट की, वो आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हो, राइट। So that you are able to convey those cultural complexities effectively, और आपका रीडर्स जो है उनसे कनेक्ट कर सके। So that is what is called as cultural adaptation. So what you are doing in cultural adaptation, you are replacing culturally specific references, idioms and expressions from source language with equivalents that are more familiar, relevant to the target audience. मतलब हम वो कल्चरल रेफरेंसेस, इडियम्स और एक्सप्रेशंस जो सोर्स लैंग्वेज में अलग होंगे, यूरोपियन कल्चर अलग है और इंडियन कल्चर अलग है। जैसे आपने एक पोइम पढ़ी थी द मैन ही किल्ड
सो उसमें शुरुआत में थॉमस हार्डी सेज दैट हैड ही एंड आई met, we would have wet our throat with a few nipperkin. That means we would have sit somewhere and had drinks together. So in Europe it is their culture that they offer you drink whenever you meet them or whenever you. और हमारे यहाँ तो अगर आप बोलें कि भाई आ जाओ सुबह सुबह दारू पीते, तो दैट इज़ नॉट आवर कल्चर. हमारी कल्चर है चाय के लिए पूछते हैं, कोई भी घर आए तो उसको पहले चाय के लिए पूछते हैं. तो तो दिस इज़ हाउ द ऑडियंस कैन कनेक्ट. अगर आप ये बोलेंगे कि वो घर आते ही उसको पहले ही पूछो भी शराब पीनी है कि नहीं, या शराब ही ऑफर करेंगे सीधा, तो दैट इज़ कल्चरली नॉट फिट हेयर इन स्पेशली इन आवर कल्चर. सो जो कल्चरल एडेप्टेशन है, that is, you are replacing the culturally specific references, idiom and expressions from the source language with equivalents that are more familiar and relevant to the target audience. मेरे target audience को जिस तरीके से समझ आता है वैसे मैं उसको समझा दूंगा. That is called cultural adaptation. Then linguistic adjustment. So different languages are different tone होता है. हर language की अपनी एक tone होता है, style होता है, and also the register of the text. So वो ज़रूरी नहीं है वो आपकी जो target audience है वो उसकी टेस्ट के हिसाब से हो. तो what you are doing is you are also carrying out a linguistic adjustment, जिसमें आप ये conventions को और जो linguistic conventions हैं और preferences हैं उनको target audience के हिसाब से बदल देते हैं. आप उसी तरह की vocabulary यूज़ करते हैं, उसी तरह का sentence structure यूज़ करते हैं, और जिससे वो अच्छी तरह से that can be easily understood by the intended readership. So these are two things which you do in domestication. First is you carry out the cultural adaptation, in which you replace the culturally specific references, idiom and expressions, and also you carry out a linguistic adjustment. In linguistic adjustment, what you do is you align those linguistic elements, that is tone, style and register of the text, with the conventions and preferences of the target audience. तो जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस हैं, बट देयर स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट. एक में बोलता है कि मैं आम खाता हूँ, आई, और इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, आम ये ऑब्जेक्ट हो गया, खाता हूँ एक वर्ब हो गया. तो इसमें SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. लेकिन इसी को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड, तो क्या हो जाएगा? मैं का आई मैंगो ईट. लेकिन वो तो गलत हो गया, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज फॉलोज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो उसमें होता है आई ईट मैंगो. तो अगर आप उसी को टारगेट ऑडियंस को सीधा वैसे ही ट्रांसलेट करके दे देंगे, तो मैं आई ईट, मैं खाता आम. So this is how a translator carries out these two changes in domestication. So domestication must be clear to you. It is a strategy where the translator adapts the text. वो उसको बदल देता है. adapt होता है change to change. जैसे मान लो आप यहाँ रह रहे हैं ठंड में, तो you wear woolen clothes और warm clothes, जैकेट पहनते हैं, अब ठंड लगी. यही आप अभी नीचे प्लेन एरियाज में चले जाएंगे तो वहाँ भी आप जैकेट पहन के नहीं घूमेंगे, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर है, 43, 44. सो देयर यू विल चेंज योर क्लोथ्स टू लाइटर वंस. सो दैट इज़ एडेप्टेशन. आप एडेप्ट कर रहे हैं चेंज. तो इसी तरह से जो ट्रांसलेटर है वो एडेप्ट करता है टेक्स्ट को, ताकि वो आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से वो फेमिलियर हो जाए, रिलेटेबल हो जाए और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. उसके लिए वो दो चेंजेस करता है, कल्चरल एडेप्टेशन और लिंग्विस्टिक एडजस्टमेंट. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं. डोमेस्टिकेशन जैसे मैंने आपको हिस्ट्री से एग्जांपल दिया, that how human beings domesticated certain animals like cows, sheep, goat and even dog, okay, because they were of use or help to them. और उसी तरह से
फॉरेनाइजेशन इसका उल्टा है। फॉरेनाइजेशन एक हुआ डोमेस्टिकेशन, जिसमें हम बाहर की चीज़ को अपने हिसाब से लाके ढाल लेते हैं। ओके, इसका और एक एग्जांपल मैं अभी फॉरेनाइजेशन में दूंगा। सो डोमेस्टिकेशन में क्या करता है जो ट्रांसलेटर, वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के, कीपिंग इन माइंड द टारगेट ऑडियंस, he adapts the source language to the target language। और फॉरेनाइजेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कल्चरल एडेप्टेशन, दूसरा लिंग्विस्टिक एडजस्टमेंट, और तीसरा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, या कुछ एम्बिग्यूअस मतलब डाउटफुल फ्रेजेस हैं, तो वो सिंप्लीफाई करता है so that the readability is enhanced and the target audience can understand easily. So you may restructure the sentences, you may provide clarification, you may use simple language so that you maintain the essence of the original text. So this is called simplification. Simplification में क्या हुआ, जो complex sentences हैं, technical terminology है या doubtful phrases हैं, उनको आप simplify करते हैं so that your, क्योंकि आपके you have always the target audience in your mind जब आप domestication की बात करते हैं, so that it is easily understandable and readable to the target audience, right? Next is localization. Localization आपने linguistic adaptation कर लिया, फिर localization means where specific cultural or regional variations are incorporated into the translation to make it more relevant and appealing to the target audience, right? तो आप क्या करते हैं, आप जो specific cultural और regional variations हैं उनको translation में डालते हैं, right? So that it becomes more relevant and appealing to the target audience। जैसे मान लो, जैसे आपका वेस्ट में जो है वो डिस्टेंस की मेजरमेंट माइल है, ज़्यादा माइल, लेकिन अगर हम यहाँ माइल बोलने लगेंगे, अगेन योर टारगेट ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि यहाँ हम किलोमीटर में ही चलते हैं, हमारा मेजरमेंट किलोमीटर है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, या करेंसी है, जैसे उसने बोला, जैसे जिम और डेला की कहानी, तो जिम और डेला उसको कितना वो सेव कर पाती है, $2 समथिंग लाइक, एंड शी नीड्स $22 more। तो वही चीज़ यहाँ डॉलर लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ करेंसी रुपीज़ में होता है, तो आप डॉलर को रुपीज़ में ले आएंगे। और कुछ कल्चर जो कस्टम्स हैं वो फॉरेन में भी होती हैं, बट उनका एक इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, सो दैट योर टारगेट ऑडियंस इज एबल टू रिलेट टू इट, right? So that is what is localization. Localization means actually you are localizing जो cultural regional variations हैं उनको आप you are putting them you are fitting them into the translation so that it becomes more relevant, ताकि आपका target audience उससे relate कर सके और उसको समझ सके। जैसे the example that is the unit of measurement, जैसे वेस्ट में माइल में मेजर करते हैं, तो करेंसी पाउंड है या डॉलर है, राइट? सॉरी, पाउंड है या डॉलर है, ओके? कुछ भी है तो हम करेंसी, यहाँ हमारे यहाँ रुपया चलता है तो हम रुपये में बोलेंगे और किलोमीटर में बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन, एंड you know translation may also consider formatting and presentation, that is also an aspect of the translation. So you know different people, they like different kind of format and presentation. So translator should be aware of this, that what kind of formatting and presentation is more suitable or more liked by my target audience, जो user friendly हो, visually appealing हो, जिसमें पढ़ने में देखने में अच्छा लगे और यूज़र फ्रेंडली, उस तरह का फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन वो यूज़ कर सकता है। जैसे सम पीपल दे लाइक सर्टेन काइंड ऑफ फॉन्ट स्टाइल या लेआउट, ओके? सो दैट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड फ्रॉम one part to another, right? So overall you can say that domestication aims to create a translation that feels natural, engaging and culturally appropriate to the target audience। कि domestication वो translation है
जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है वो मेरे टारगेट ऑडियंस को नेचुरल लगे, एंगेजिंग लगे और कल्चरली अप्रोप्रिएट लगे, वाइल इफेक्टिवली कन्वेइंग द इंटेंडेड मैसेज। ये नहीं कि मैं मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दूँ, मैसेज तो जो हमारा सोर्स लैंग्वेज में है वही कन्वे होना चाहिए, बट should be conveyed in a manner that your target audience is able to understand it, right? So this approach is commonly employed in translation of literary works, marketing materials, advertisements, and other consumer related content where readability and audience engagement are paramount. तो ये इस तरह की जो टेक्निक है वो कहाँ यूज़ होती है? लिटरेरी वर्क्स की ट्रांसलेशन में, मार्केटिंग मटेरियल की ट्रांसलेशन में, एडवर्टीजमेंट्स आपने देखा होगा, ये हंडाई इट इज़ अ कोरियन कंपनी, बट जब वो अपनी ऐड बनाती है तो इट कीप्स इन माइंड द इंडियन कंज्यूमर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। वो ये नहीं वो कोरिया के हिसाब से यहाँ ऐड बना के दे देगी, तो दैट पीपल विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट, और वो अपना इतना इम्पैक्ट नहीं बना पाएगी। तो उस ऐड में फिर शाहरुख खान ही आएगा, उसमें वो साउथ कोरियन कोई स्टार को ले आएंगे तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये कौन भाई साहब आ गए, तो लेकिन वो शाहरुख खान को बुलाएंगे तो हंडाई की ऐड में तो और कॉन्सेप्ट और कनेक्ट करेंगे, वो दे विल कनेक्ट विद द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस जैसे हमारे रोड हैं, जैसे हमारे लोग हैं, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसी हिसाब से वो एडवर्टीजमेंट बने, ना कि कोरियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या कोरियन कल्चर के हिसाब से। सो दिस इज़ आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ domestication. A brief, just a brief recap. So, domestication, you understood, it involves cultural adaptation, linguistic adjustment, simplification, you're simplifying complex sentences, terminology, then you are trying to localize, okay, you try to make it more relevant and appealing to the target audience, then formatting and presentation. Then, इसका जो बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ फॉरेनाइजेशन। So domestication क्या था? My target audience was more important, so I did the adjustment to make the source language easy, natural and understandable to my target audience. But foreignization is just opposite to domestication. वहाँ पे हमारे लिए source language उतनी important नहीं थी, लेकिन यहाँ we are faithful to the source language text. So foreignization in translation is the opposite approach to domestication. तो फॉरेन आपको पता है डोमेस्टिकेशन में हमने क्या किया, अपने जो सोर्स टेक्स्ट थी उसको अडेप्ट कर लिया, उसको बदल दिया हमने अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। जैसा मान लो मैंने एक सोफ़ा ले आया मैं, और मेरे दरवाजे से अंदर नहीं जा रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा काट देता हूँ और अपने अंदर ले जाता हूँ, कमरे के अंदर रख देता हूँ, वो डोमेस्टिकेशन हो। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं सोफे को काटने की बजाय अपना दरवाज़ा काट लो, या दरवाज़ा ही उखाड़ दूं पहले फिर सोफ़ा अंदर ले जाऊं, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेनाइजेशन। So instead of adapting the text to the linguistic and cultural norms of the target audience, foreignization deliberately retains the element of the source language and culture. इस foreignization में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो हेयर वी आर नॉट ट्राइंग टू अडेप्ट, हम उसको चेंज नहीं करते, बल्कि हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको रिटेन करते हैं, उनको वैसे का वैसा ही रखते हैं जैसे वो सोर्स लैंग्वेज में थे और जैसी उसकी कल्चर थी, उसको हम वैसे का वैसा रखते हैं ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में। वाई? बिकॉज दिस अप्रोच सीक्स टू प्रिजर्व द फॉरेननेस एंड यूनिकनेस ऑफ द ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट। ओके, ताकि आप जो सोर्स टेक्स्ट है उसकी डिफरेंस को समझ सकें। अगर आपने उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया तब आपको समझ नहीं आएगा कि वहाँ कैसी कल्चर है, या जब आप उसको वैसे का वैसे रखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर कल्चर, और व्हाट इज़ सो यूनिक और व्हाट इज़ सो फॉरेन इन दैट लैंग्वेज। सो द टारगेट ऑडियंस इज एबल टू एक्सपीरियंस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ द सोर्स मटेरियल। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, जब मैं पोइम पढ़ूंगा द मैन ही किल्ड, कि अच्छा वहाँ पे ऐसा कल्चर है, वहाँ बैठ के वो आपस में दे टेक सम पिंट्स ऑफ बियर,
साथ में बैठ के, दिस इज़ कॉमन इन वेस्टर्न कल्चर। तब मुझे ये पता चला, बिकॉज दैट दोज एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंस दे वर प्रिजर्व। अगर मैं इसी कहानी को ये बोल देता कि वो बैठे और चाय पी, तब इट लुक्स लाइक आवर कल्चर, सो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माई कल्चर एंड हिज कल्चर और द अदर कल्चर, राइट। सो ये है फॉरेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, दैट इट रिटेन्स द एलिमेंट्स। ये उनको लोकलाइज नहीं करता है, ये उनको फॉरेन नहीं रहने देता है, राइट। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फॉरेनाइजेशन? पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर। तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसलेटर जो है वो उसके लिंग्विस्टिक फीचर्स को वैसे का वैसा ही रहने देता है, द इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, वर्ड प्ले, सिंटैक्स, so that they remain authentic and they retain a flavor of the original text, right? मैं बदलता नहीं हूँ उनको, ठीक है। तो मुझे अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो मैं दो चपाती के बीच में थोड़ा सा मक्खन डाल के, उसमें प्याज और टमाटर डाल के वो उसको लोकलाइज नहीं करूँगा, उसको डोमेस्टिकेट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं बाज़ार में जाऊँगा और प्रॉपर पिज़्ज़ा की दुकान से पिज़्ज़ा खरीद के लाऊंगा, जो एक्चुअल पिज़्ज़ा है वैसे का वैसा ही, जैसा वो बनता है, जैसा वो है, राइट। सो दैट उसका फ्लेवर और ऑथेंटिसिटी जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहे। तो दैट इज़ फॉरेनाइजेशन। और दूसरी चीज़, इट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब है कि योर प्रायोरिटी इज़ दैट यू शुड रिमेन फेथफुल टू द सोर्स टेक्स्ट, के सोर्स टेक्स्ट के बिल्कुल मैंने फेथफुल रहना। मेरा पर्पज़ रीडेबिलिटी या फ्लुएंसी नहीं है टारगेट लैंग्वेज, मेरा पर्पज़ है फेथफुलनेस टू द सोर्स लैंग्वेज। सो कई बार ऐसी ट्रांसलेशन होती है वो थोड़ी कम नेचुरल दिखेगी और इडियोमेटिक होगी टारगेट लैंग्वेज में, बट इट विल क्लोजली मिरर द स्ट्रक्चर एंड वर्डिंग ऑफ द ओरिजिनल। सो इट इज़, यू कैन से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। You are not changing or adapting, you are just because your purpose is more fidelity or more faithfulness to the source text, right? Then तीसरी चीज़ जो पिछले से अपोजिट है वो क्या है, वहाँ पे हम कल्चरली रिलेटेबल बना देते थे अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, कल्चर को रिटेन करते हैं, right? We try to preserve the cultural references, customs and nuances. Nuances means complexity present in the source text. हम जो जैसा है, जैसी उसकी कल्चर है, जैसी कस्टम्स हैं, वो सारी की सारी जो सोर्स टेक्स्ट में उनको वैसे का वैसा ही रखते हैं, even if they are unfamiliar or challenging for the target audience, right? Okay, now another concept which is there in the Western world is they very proudly talk about their first wife, second wife, third wife, she is my ex-husband or she is my ex-wife, और तो ये उनकी वेस्टर्न कल्चर में ये कॉमन चीज़ है, बट हेयर इन इंडिया वी शाई अवे फ्रॉम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरह की स्टोरी जब अगर आप डोमेस्टिकेशन में बताएंगे तो यू विल ट्राई टू मोल्ड, चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉरेनाइजेशन में विल ट्राई टू रिटेन इट एज इट इज़, so that your reader he engages directly with the cultural context of the original work. Okay, then fourth is highlighting differences. So when you maintain the elements of the source language and culture, जब आप उस सोर्स लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं कर रहे, उसकी कल्चर जैसे का जैसा वैसे का वैसा ही आप रख रहे हैं, तो फॉरेनाइजेशन से क्या पता चलता है, ये दो कल्चर के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉन्ट्रास्ट, वो क्लियर आपको दिखता है। Okay, so foreignization highlights the differences between the source and the target culture so that the readers can explore and appreciate linguistic and cultural diversity. तो आप उनको उन्हीं की तरह बना के नहीं दे रहे हैं, आप जो डिफरेंस है जैसा है वैसे का वैसे ही आप उनको पेश कर रहे हैं, तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी कि भाई हमारे में और उनमें क्या फ़र्क है, वो समझ में आता है। Then last point is challenging readers. So foreignization, that is a kind of challenge to the readers, because we people have our own concept, own culture, own language, own concepts. Okay, so once you are given directly a dose of a different culture, then
then we get out of our linguistic comfort zone and we can try to engage with the text which is different from our own culture or linguistic background. तो एक तरह का चैलेंज होता है ये रीडर के लिए कि उसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, एक डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर जो है उसको he has to go through it. So then you can understand the both source culture and the language. So ultimately you can say that foreignization is ये ऐसे वर्क्स में एम्प्लॉय होती है जहाँ पे फेथफुलनेस ज़्यादा चाहिए आपकी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, सोर्स टेक्स्ट. तो इस तरह की ट्रांसलेशन समटाइम्स इन लिटरेरी वर्क्स, पोइट्री एंड टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, राइट, वेयर क्योंकि अगर हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव है तो आप कोशिश नहीं करेंगे उसको बदलने की, राइट, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी आपको और उसकी यूनिकनेस. सो दैट इज़ इन सच काइंड ऑफ टेक्स्ट जो हिस्टोरिकल हो या कल्चरल इन्फ्लुएंस उसमें हो, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम वैसे का वैसे इसको रिटेन करें. एंड however, it may not always be suitable for text intended for a general audience or those requiring clear communication and accessibility. लेकिन ये वहाँ पे यूज़ नहीं होगी जहाँ पे आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, जैसे हमने पिछले वाले में डोमेस्टिकेशन में पढ़ा था, जैसे एडवर्टीजमेंट है या योर सम रेफरेंस मटेरियल है जो कंज्यूमर्स के हिसाब से, दैट देयर यू हैव टू डोमेस्टिकेट. सो ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटर्स हैं वो एक तरह से बैलेंस बनाते हैं दोनों के बीच में, फॉरेनाइजेशन विद डोमेस्टिकेशन, वो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रांसलेशन टास्क एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट ऑडियंस. सो दोनों एक्सट्रीम में तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकती. सो दे ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, दे ट्राई टू रिटेन certain elements of the source language, that is they try to foreignize, and they also try to localize, okay, that is domestication. So this is how translation happens. These are two concepts which are important, and I hope you understood both. If you didn't, then please just go back, and in the next video we will start another important topic, that is metaphrase. For the time being, I think this is enough.